magical Monday morning again. It's so beautiful, whenever we get back, we connect. And today, as I'm again welcoming on a Monday morning, it is giving me just, those amazing memories. So many Mondays, we've been together. Yeah, that too consecutively, one after the other. We feel so blessed to be together, enhance, and open up to our own magic, the magic that has been waiting for us all this while. And that magic which was so ready to open up, and that magic had been poking us for so long, asking us, when are you going to give me way? When are you going to make me come home? When are you going to make me one with you so that your entire life, from top to bottom, from inside out, it becomes magical. Everywhere that we've not been able to yet open up doors to that magic, creating a miraculous, not just a Monday, every day, every moment, every breath, magical, productive, meaningful, everything that is. Are you this time ready for that? I don't know, today I wanted to talk about something, goals that all of us have. And before I go further, actually, Natasha wanted to share, because she's not going to be on call for the entire time. I will take up this topic after she shares, and then we will take the call forward, yeah? Yeah, Natasha, let's have it from you. Yeah, Malvika, first of all, thank you very much for the healing you have done for me yesterday. And I think thank you. मेरे को हमेशा लगता है कि बोलते हैं लोग कि no thank you, no sorry in friendship. But I feel कि फ्रेंडशिप में ज़रूर बोलो, क्योंकि वो इतना कुछ करते हैं, वो सबसे पहले थैंक यू डिजर्व करते हैं. और हीलिंग के नाम पे थैंक यू बहुत स्मॉल वर्ड है, बहुत छोटा. But I'll say I have lots of love and gratitude for you and for His Highness who is protecting us. Guys, I start from the very beginning. मैं शुरू से ही एक स्पिरिचुअल या रिलीजियस कह सकते हैं पर्सन रही हूँ, और रब का हाथ हमेशा हमारे सिर पे होता है, मगर हम कितना को मानते हैं ये बहुत बड़ी बात है. दैट ग्रैटिट्यूड है कि नहीं है, और जो जो चीजें हैं उसके लिए कितना है, वो बहुत मायने रखता है. Although I was in lots of gratitude and I know in any which way इतना कुछ देख लिया है, मेरे को पता है रब बैठा है, सब हो जाएगा. मगर पिछले एक महीने से I was feeling very heavy because of thanklessness for whom? For my light, for my white light, for my रब. मुझे ऐसा लगता था कि सब कुछ आ रहा है, एनर्जी फ्लो हो रही है, मनी की प्रॉब्लम है, फलाना है, ढिमकाना है, जो भी है वो सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ सॉल्व होते हुए. मगर सॉल्व होते हुए भी ग्रैटिट्यूड आ ही नहीं रहा. देखती हूँ लोगों को समझा रही हूँ, अपने आप को कैसे समझाना है ये बड़ा मुश्किल लग रहा था. Each and every call opens up so much. There is no doubt. There is no single doubt. But पता क्या, जब अपने आप से जब आबरू होते हैं ना, तो वो बड़ा मुश्किल होता है उसको सहना. और मुझे बहुत हैवी लग रहा था in any kind of thing, like relationship, be it money, be it everything in my life. Yes, 2-3 days before I talked to Malvika, she said, "आ जाओ ना,
चलो हीलिंग करते हैं. I said okay, as if I was like waiting for that. Yesterday after attending the session, even उसने अभी 1 घंटा मुझे लगता है किसी का सेशन लिया था. मैंने बोला भी, मैंने कहा मालविका फिर कर लेंगे, बट कहते हैं ना जब रब को मंजूर होता है तब सब कुछ सामने आता है. मेरे घर में गेस्ट बैठे हुए हैं, मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देती है नेगेटिविटी कि आप चाह के भी वो चीज कर नहीं पाते हो. मगर जब आप कंसिस्टेंट हो जाते हो इन एनी विच पे, वो सेशन हुआ. That 1 hour session gave me lots and lots of ease, mentally and physically both. मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे ईयर ड्रम्स बज रहे हैं और उनमें से कुछ निकलना चाहता है. एंड यू डोंट बिलीव इट. पता क्या, हम डाउट भी कर लेते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है या ऐसे हो रहा है. मैं इतना रो रही हूँ, मेरे नॉस्ट्रिल्स बंद हो चुके हैं. ये मेरे साथ होता है, मैं रोती हूँ तो नॉस्ट्रिल बंद होते हैं. मगर ईयर ड्रम्स बंद होना कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि हम ना अपनी इंटेलिजेंस ही लगाने लग जाते हैं. फिर मैं 1 घंटे में 10 बार ऐसे हुआ होगा, मैं कहती हूँ शायद 20 बार हुआ होगा कि कोई ईयर ड्रम मेरे बजा रहा है, बाहर निकलना चाहता है पर वो निकल ही नहीं रहे. देन धीरे धीरे विद द सेशन मेरे को ईज आना शुरू हुआ. जो पहले 10 मिनट था वो अगले 10 मिनट नहीं था, और उससे अगले 10 मिनट और कम था. और जो थोड़ा बहुत रह गया वो मेरा बाद में सोने के बाद वो काफी निकल गया. एंड आई वाज जस्ट शेयरिंग विद मालविका कि मालविका मुझे ना ऐसे वॉमिट फील हो रहा है, पर सुबह से मैं बहुत ईज में हूँ. सबसे बड़ी बात होती है कि आप जब अंदर से ईज में होते हो तो आप सब कुछ देख लेते हो, सब सह भी लेते हो. और इस मुकाम पे मुझे ना मालविका ने इतनी को हीलिंग और इतनी को ईज दी है कि जितने शुक्राने करूं उतना कम. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टू बी ग्रेटफुल फॉर माय रब, सो दैट, क्योंकि जब मैं अगर उसकी कहते ना उसकी अगर रजा में राजी रहते हो और उसके साथ बने रहते हो और वो आपको अपने साथ हमेशा लेके चलता है और आप उसको भी ग्रैटिट्यूड में रखते हो, तो अपने आप चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं. ये मेरा मानना है, फिर चाहे कुछ भी आ जाए. और अभी तक उसी ने सॉल्व किया, आगे भी सॉल्व होगा. मगर सबसे बड़ी बात है कि जब उसमें आपको कोई हाथ पकड़ के वो कनेक्शन बनाने वाला मिल जाता है ना, वो लिंक कई बार इतना को जरूरी होता है कि आप समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है. मेरे साथ यही हो रहा था. मुझे लग रहा था कि यार मेरे पास रब है, मेरे पास सब कुछ है, मैं ग्रेटिट्यूड में भी हूँ, फिर भी मैं कनेक्शन क्यों नहीं फील कर पा रही. बट गाइज, आई प्रॉमिस यू इट वाज रियली अ गुड सेशन. आई एम एट पीस. सबसे बड़ा मन हल्का हुआ है मेरा, और मुझे लगता है कि आगे भी सब चीजें धीरे धीरे सब ठीक होंगी. आई नो, इतने अच्छे फ्रेंड हो हैं, और क्या चाहिए इससे ऊपर और क्या चाहिए. थैंक यू सो मच मालिक. So good. Thank you so much for sharing. And it's always, I think the one above is so, इतने उसके मैंने ग्रेसेस देखे हैं, इतनी उसकी जो है ना उसकी इतनी मेहरें देखी हैं अपनी जिंदगी में, और मुझे लगता है वो ना होती तो मेरी एग्जिस्टेंस तो खैर पॉसिबल नहीं थी. मुझे बाकियों का पता नहीं है. या और ये जो मेरे रहती है ना, है ना, मुझे पहले आदत थी, कोई कन्वर्सेशन होती थी ना तो मैं उसको हमेशा कहती थी, नहीं उसकी किसी ने पूछना मालविका तुम्हारा कैसा हाल है, मैं कहती थी उसकी बहुत दया है. और फिर पता नहीं कैसे आपके अंदर से कुछ समझ बदल जाती है, जो कि मैंने वर्ड जो दया था ना उसको रिप्लेस करना शुरू कर दिया और मेहर यूज करना शुरू कर दिया. और आप इन 2 वर्ड्स के साथ भी अगर छोटा सा खेल खेलेंगे ना तो आप उसको
आंख बंद करके दया बोलिए और आंख बंद करके मेहर बोलिए, तो आपको उन दोनों शब्दों की एनर्जी का जो डिफरेंस है, डिफरेंशियल, वो आपको वेट वाइज समझ आएगा और आपको एनर्जी वाइज समझ आएगा। सो दया जो है ना, वो कहीं नेगेटिंग है, हाँ? और मेहर जो है ना, वो ऑल ब्लॉसमिंग है। और तब से ये शब्द मेहर मैंने यूज करना शुरू किया और मुझे लगता है जब 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 से वो यूज करना शुरू किया, तब से मुझे लगता है कि लाइफ के मायने में बहुत सारे बदलाव मैंने हर रोज हर घड़ी मैं उनको देखती हूँ, उनको महसूस करती हूँ। एंड जैसे नताशा के कल के सेशन के बारे में कह रही थी, मुझे ऐसे लगता है जब हम एकदम तैयार रहते हैं ना, तो ऊपर वाला हमारे से पहले तैयारी पे है कि हाँ भाई अब तो बदल ही देना है ना? क्योंकि उसकी तरफ से जो है ना, जैसे हम कल पूरी क्लास एक बहुत डिफरेंट सी क्लास थी, सारी क्लासेस ही डिफरेंट है, मगर जो कल किया वो कुछ और ही था। उसमें भी मुझे मुझे लगता है कि हर हर चीज ना, अगर यही क्लास जो कल थी व्हाट इज गॉड, अगर ये 20 दिन 25 दिन 50 दिन पहले आती ना, तो उसका वक्त था नहीं अभी, है ना? कुछ पहले बहुत कुछ अंदर से खुलने की जरूरत होती है, तब हमारी रिसीविंग शुरू होती है। हाँ? और रिसीविंग जो है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या रहता है रिसीविंग, क्योंकि ना सच्चा वो सच होता है, इसलिए सच को एब्जॉर्ब करने के लिए मुझे कुछ ज्यादा ओपनिंग की जरूरत रहती है। हाँ? तो वो जब इतना कुछ खुल जाता है ना, और फिर वो टॉपिक आता है और फिर हम उसको कैसे रिसीव करते हैं, है ना? तो वहां पे कोई पुल एंड पुश नहीं रहती, क्योंकि हमारी समझ वहां तक पहुंच चुकी है कि द नेक्स्ट स्टेप इज जस्ट देयर। व्हाई? बिकॉज यू आर सो रेडी फॉर दैट नेक्स्ट स्टेप। सो एवरीवेयर, जहां जहां भी मुझे लगता है कि हमने अपनी एनर्जी एक्सटेंड करनी चाहिए मगर कर नहीं पा रहे थे, कुछ भी वजह हो, तो तब उसके लिए एक थोड़ा बड़ा जोल्ट की जरूरत रहती है। तो जब वो थोड़ा बड़ा जोल्ट, जैसे हम कपड़े धोते हैं, निचोड़ते हैं, फिर उनको झटक देते हैं ना, तो हाँ, और फिर डालते हैं, तो उसकी जो सिलवट है ना, वो हट जाती है ना? तो वैसे ही कुछ हीलिंग में भी रहता है कि हमें जो सर्कमस्टेंसेस हैं, हमारी एनर्जी जो है वो हमें निचोड़ती चले जा रही है ना? और फिर हम चॉइस करते हैं, और फिर वो जो चॉइस ऑफ हीलिंग है, वो आपके वो जो क्रीज हैं बनी हुई, उनको झटक देती है। हाँ? और वो हीलिंग जो है उसके लिए वो सब आसानी कर देती है, और जो भी चीज आपको नहीं चाहिए वो चले जाती है। तो वो क्रीजेस जब कम हो जाती हैं, तो हमारी लाइफ में जो है वो इजी 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 होना शुरू हो जाता है। या? क्योंकि मुझे लगता है कि नाउम्मीदी से बड़ी जो है ना, कोई चीज नहीं होती नाउम्मीदी। हाँ? जहां मुझे लगे नहीं, बस अब तो जिंदगी खत्म है। हाँ? और जैसे हम कल कह रहे थे ना कि डिवाइन लाइट एक ही है। हाँ? एक और एक ही है क्रिएटर, मगर ना उसमें जो एक जो शैतान है ना, जिसको हम शैतान कहते हैं या समझते हैं, वो पता है कौन है? हमारा माइंड, है ना? सिर्फ एक ही एक शैतान है अपने पास, वो है हमारा माइंड।
है ना? क्योंकि उस शैतान को जीत लिया ना, तो बस बाकी सब शैतानी खत्म, बाकी सब शैतानी परेशानी सब खत्म। और उसको जीतने में ही हमें हमें कितना कितना हमें कमिटमेंट चाहिए, और उसको कितना हमें उसके लिए हमारी तवज्जो चाहिए, और उसके लिए कितना हमें अपने साथ मोहब्बत चाहिए, और फिर कितना हमें ट्रस्ट चाहिए कि हाँ, हाँ, मैं इस शैतान से जीतने लायक हूँ। और वो जो शैतान है ना, वो हमारे 5 वाइसेस, उसको जब हम काबू कर लेते हैं ना, तो फिर वो हमारे अधीन होके चलते हैं, नहीं तो उल्टा हम उनके अधीन। कितना फर्क है, कितना फर्क है ना? अधीनता का क्या मतलब रहता है? हमेशा उसके नीचे दब के चलना, कोई भी हो, व्यक्ति हो, सर्कमस्टेंसेस हो, वाइसेस हो, वही तो अधीनता है। और हम लोग क्या है, इन वाइसेस से हमेशा अधीन उनके रह के हमारे अंदर से जो है हम खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और जब हम जागृत होते हैं, in the conscious state that we start taking our life's turn to, then what happens is, ये वाइसेस जो है ना, ये हमारे अधीन। उनको पता है इनके ऊपर हम इसके ऊपर ज्यादा वार नहीं कर सकते, बस इतनी सी स्टोरी है जिसमें हमारी पूरी लाइफ की स्टोरी खत्म हो जाती है। नहीं तो जब जब हमें अपना गोल जो है वो अगर पता रहे, क्या है हमारा गोल, क्या है हमारा लक्ष्य, क्या है। और आज ना एक्चुअली ये गोल पे बात करना चाहती थी, मगर does anybody have any questions till now, because that topic itself is like, it's going to take some time. Are there any questions for all the classes that we've done, for any queries, for any doubts, for anything? Yeah, is there somebody? Yeah, Malvika. हाँ, बोलो जी। Yeah, I want to share one thing. कल के सेशन में बहुत कुछ क्लैरिटी आई है। उसमें से एक क्लैरिटी का मैं नाम अभी का बताऊंगी, 10 मिनट पहले की बात, कि जिस पर्सन के बारे में मुझे बहुत ज्यादा हेटर थी, उस पर्सन की ने मतलब वो पूरी फैमिली ने आज हमारे को विजिट करना है लंच टाइम में। एंड यू नो व्हाट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड वो जादू टूना, ये वो पता नहीं होता है नहीं होता है, जो भी है वो वहमबाजी है जो है, आई डोंट नो सो मच, कि मेरे को यही लगता है कि यार कोई आ रहा है तो वो यही करने आ रहे हैं या कुछ। सो आज की मेरी एनर्जी ये थी, जब मुझे पता चला कि वो लोग आ रहे हैं, मैं क्या रब बड्डा क्या गंद बड्डा। एंड ये क्वेश्चन में मुझे ये समझ में आया कि रब भी बड्डा है भाई। यू नो व्हाट, इतनी ये जो प्रॉब्लम मैं शायद आपको छोटे वर्ड्स में बता रही हूँ, ये बहुत बड़े मैं उन चीजों में से निकली हुई हूँ। एंड मुझे किसी ने ये भी बोल दिया फलाना फलाना कर दे ऐसा, या कुछ वो नजर उतार लो या ये कर लो। मैंने कहा ओके, मैंने ओके उनको कहा, क्योंकि अंदर डाउट होता है ना, मन खराब होता है, आपने इतना उत्साह होता है, आप सोचते हो ये पता नहीं क्या कर जाएंगे, बिकॉज वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू। फिर मेरे मन में एक ही बात आई, रब बड्डा के गंद बड्डा। मैं क्या नहीं, और अगर इसको रब ही चेंज बड्डा करें, है। और अगर इसको थोड़ा सा और चेंज करें तो, या लेट्स डू इट। राबो वड्डा के गंद वड्डा। जैसे when we talk about गंद, तो वो हमेशा जजमेंट से आता है, ओके। है ना? हम्म। और जजमेंट ना, हम जो कॉन्शियसनेस होती है ना, इट इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग जजमेंट। या तो जब हमने चीज जज कर ली ना, तो बस उसकी एनर्जी हम कभी बदल नहीं पाते हैं। इस चीज का हमेशा याद रखना, है ना?
इसे सारी चीज का एक वर्जन नया बनाते हैं, है ना। अगर हम इसका कंपैरेटिव ना रखें, रब वड्डा ते रब ही वड्डा, does the judgment go away? So much ease. Does the judgment go away? हम कभी भी जो मांगते हैं ना, उसको जजमेंट इंक्लूड करके मांग नहीं सकते, क्योंकि जब हम जजमेंट इंक्लूड कर लेते हैं तो वो टॉक्सिसिटी से मांगते हैं, जो टॉक्सिसिटी मेरे शरीर, मन, बुद्धि, घर हमेशा चल रही होती है ना। तो अगर मेरी बुद्धि कहती है रब वड्डा और रब ही वड्डा, उससे सारे नीचे वाली चीजें अपने आप डिलीट हो जाती हैं, हमें डिलीट भी करने की जरूरत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा डिलीट करने वाला फैक्टर है मेरा विश्वास, माय ट्रस्ट। माय ट्रस्ट इज सेइंग रब वड्डा और रब ही वड्डा, उसके नीचे जो भी आए उसका भी भला हो। जय। Isn't it? Isn't it? क्योंकि उससे कम की चीज के लिए हम बने ही नहीं है। हमने कैसे सोच लिया, जो भी लोग, मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊं, जो भी लोग आपका सबसे ज्यादा ना भला चाहे ना, है ना, उनका सबसे ज्यादा भला, उनका सबसे ज्यादा भला हो। क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊं, जिन कांटों में वो जी रहे हैं ना, उन कांटों का आपको एहसास भी नहीं है, आपको उनका एहसास भी नहीं है। और उनके कितने कांटे होंगे कि वो कांटों की सेज पे बैठे होते हैं। हम कभी किसी का बुरा चाह ही नहीं सकते जब तक मेरे अंदर बुराई ना हो, है ना। बिल्कुल। और सड़क से भी जाते लोग कर रहे उसका भी भला, उसका भी भला, मेरे जिससे नहीं देखा उसका भी भला, जिसका देखा उसका भी भला, है ना। और जो मेरे लिए कटु सोचता है उसका सबसे ज्यादा भला। करना किसने भला, ऊपर बैठा है वो ही करने वाला है। मैं तो कुछ करने लायक ही नहीं हूँ। मेरी लायकियत होती तो फिर मैं तो क्या ना क्या कर देती। मैं तो आईफल टावर यहाँ खड़े कर देना था कमरे में, नहीं है। Isn't it? और पता है क्यों उनके लिए भला मांगते हैं? उनके लिए इसलिए भला मांगते हैं क्योंकि उनको वो वाला दरवाजा दिखाना जिससे तुमने मुझे आराम दिया, वो दिखाना। उनको अभी कोई दरवाजा नहीं दिखा, अगर दिखता तो ये हरकत नहीं करते। और मैं तुमको एक बात और बताती हूँ, पीपल हु आर हाई इन एनर्जी, उनके साथ सब लोग जुड़ के रहना चाहते हैं, है ना। और किसी आपका अगर कोई बुरा भी सोच रहा है ना, वो भी एक जोड़ है। वो आपसे एक्चुअली उसको जुड़ने का पता नहीं है, जुड़ कैसे सकते हैं। आप उनको ऐसे लगता है आप उनके काबू में हो जाएंगे अगर वो आपका कुछ बुरा करेंगे। एक्चुअली उनको पता ही नहीं है कि हम पॉजिटिव कनेक्शन भी लेके आ सकते हैं, समझ रहे हैं। उनको इस चीज का पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। अगर उनको जरा सा भी एक रत्ती भर भी अंदेशा होता है ना, आज तक कुछ ना वो करते ही ना, ये मैं आपको लिख के बता सकती हूँ, है ना। और जिस घर में रब बैठा है उसमें कोई करके तो देखे जैसे कि है यार, आपका तो बाल बांका ही नहीं हो सकता। वो तो बैठा है यहाँ पे, उसकी जगह पे हम बैठे हैं। वो हमारी जगह पे नहीं बैठा, हम उसकी जगह पे बैठे हैं। ये घर जो है ना, ये उसका घर है, उसने हमें किराएदार रखा हुआ है, आप ये सोच लीजिए, है ना। तो ये घर मेरा नहीं है, ये घर उसका है, उसने मुझे दिया हुआ है। हाँ यार, 2010 20 50 साल तुमने यहाँ रहना है, मौज करो, जगह है मेरी है। इस चीज का कभी इन्वर्टेड एनर्जीज में जब भी हमने सोच लिया मेरा घर, प्रॉब्लम शुरू, प्रॉब्लम शुरू। मेरे बच्चे, प्रॉब्लम शुरू। मेरा हस्बैंड, प्रॉब्लम शुरू। तेरी चीज तुझे मुबारक, जितने दिन तूने मुझे इसको एंजॉय करने के लिए दिया है ना, उसमें मौज भर देना, उसमें आराम भर देना, उसमें सुकून भर देना, उसमें इतनी इतनी खुशी भर देना कि जो मायूस भी आए ना, वो भी खुश होके चले जाए। क्यों? क्योंकि तू बैठा है, क्योंकि तू बैठा है।
समझे क्या नहीं, है ना। और हमें वहां तक कोई हमारा बाल बांका करने के लिए पैदा नहीं हुआ। जब मैंने सोच लिया मेरे पे कोई कुछ कर सकता है, तब लोगों को मैंने कैपेसिटी दे दी कि वो मुझ पे कुछ कर सकते हैं। क्यों? मेरा ये कहां से आया? मुझे कहीं एक रत्ती भी डिस्ट्रस्ट है। अगर उनसे ऊपर मैंने उस रोशनी से जो रिश्ता जोड़ा है, जो सारी दुनिया को रोशन करती है, समझे। मैंने उस रोशनी से रिश्ता जोड़ा है जिससे सारी दुनिया रोशन करती है। तो ऐसा हो ही कैसे सकता है कि कोई मेरी विसिनिटी में आए और उसकी जिंदगी रोशन ना हो? कैसे हो सकता है? हो सकता है, मतलब आपके कभी ख्वाब में भी आ सकती है ये चीज। उस रोशनी से जुड़कर आप हमेशा उस नूर को, आप सिर्फ एक रेडिएटर बन के रह जाएंगे। और आप नूर को जब रेडिएट करते हैं ना, लोग आपसे चिपकते चले जाते हैं। आपसे नहीं चिपकते, आपकी फिजिकलिटी से नहीं चिपकते, आपकी एनर्जी से चिपकते हैं। क्योंकि उनके आपके पास आने से उनको आराम मिलता है। जहां जहां इस चीज का शक हो, उस चीज में आप अपने आप से पूछिए, मुझे अगर मैं रब भी कहूं तो ऐसे कैसे रब को मैं मैं ऐसे कैसे रब का बच्चा हूं जिसपे मुझे शक ही है। अगर मुझे अपने बाप पे शक ही रहे तो मेरा बाप ही कैसा यार, कैसा बाप हो सकता है वो? हो सकता है क्या, है ना। तो जिस बाप की हम बात कर रहे हैं ना, वो बापों का बाप है, वो कालों का काल है ना। हाँ? वो सिर्फ कल्याणकारी है, सिर्फ कल्याणकारी, इससे कम कुछ नहीं। अपने को पता ही नहीं है क्या होता है अकल्याण। यू गेट दैट? कितनी कन्विक्शन चाहिए उस चीज में, ये हमें अपने आप से पूछते रहना पड़ता है कि क्या मुझे एक डाउट है कि वो कल्याणकारी है ना। और जो कोई मेरा अकल्याण भी चाहे उसका भी वो कल्याणकारी ही है, क्योंकि वही तो सद्बुद्धि देगा। आज हमें भी उसी ने ही दी कि हम इकट्ठे बैठ के कुछ उसका नाम, कुछ उसका सिमरन, कुछ उसकी रियलिटी, कुछ सच्चाई के साथ एक कदम और जुड़ जाते हैं हर दिन। बस, समझे क्या नहीं, है ना। जिसने भी कभी अकल्याण की बात सोची, मैं पड़ोसी किसी और की, वो किसी की, है ना। हमें सबसे पहले हेट्रेड कहां से आती है? हेट्रेड आती है क्योंकि हम कहीं अपने आप को हेट करते हैं। हमें ऐसे लगता है कि वो मेरे से पावरफुल हो गया। पावरफुल तो मैंने दे दी उसको पावर। मैंने उसको कूड़ा समझ के उसको तो पावर दे दी। उसको दे दी ना पावर कि अब तुम हो तो तुम अपना जोर जबर दिखाओ ना। तुम्हारी पावरफुलनेस कहाँ है? तुम्हारी पावरफुलनेस उस नूर में है, उस रोशनी में है जो अंधकार को भी रोशनी में बदल दे, है ना। डीपेस्ट ऑफ डीप जो डार्कनेस होती है ना, उसको भी वो रोशनी में बदल देती है। वो रोशनी है। तो जब भी इससे जरा सा भी, और वो आ रहे हैं ना, अच्छी बात है। व्हाट इज पर्सपेक्टिव चेंज कैसे करते हैं? कैसे करते हैं बताती हूँ आपको कैसे करते हैं पर्सपेक्टिव चेंज। अपने दिल ने इतने साल ये चीज इस रोश में रहा है, हाँ, कि वो जब भी आते हैं ना कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ वैसा हो जाता है। हाँ, तो इसका पर्सपेक्टिव दूसरा क्या है? पर्सपेक्टिव ये है कि इतना कुछ जो जो तूने कल शाम इतना कुछ जो हटा दिया ना, इतना कुछ जो हटा दिया ना, अब जो आ रहा है ना, अब जो आ रहा है उसको तो मैंने गियरलेस कर चुका है। तू, मैंने नहीं, तुम गियरलेस कर चुके हो। इट्स अ गियरलेस व्हीकल दैट दे आर कमिंग ऑन। ओके,
Why? Because I'm all geared. Geared with what? Power. Whose power? Your. हर एक चीज तो तेरी है. हर एक चीज तो तेरी है. Isn't it? मैं तो सिर्फ एक साधन हूं. हर एक चीज तेरी है. ये सांस, ये आंख, ये सोच, ये कुछ भी है ना, वो सब तेरी है. हाँ, सभी कुछ तेरी है. और आज जो ये आ भी रहे हैं ना, ये सिर्फ तुझसे ही जुड़ने आ रहे हैं. सिर्फ तुझसे. क्यों? क्योंकि शायद इस ये जो 2 फुट जमीन है ना, इससे उनका कल्याण हो जाना है आज. आज ही हो जाना है, कल नहीं. Can I add something? आज. Yeah, sure. It's a beautiful, description and analysis of the situation. I'll just quickly say a beautiful story. बिल्कुल connect कर रही है. There was a girl in the aeroplane. She was about 3 years old. She was sitting and a gentleman sat beside her. And when the plane was right about 36,000 feet or 40,000 feet above the ground, there was a big turbulence. And the announcement started coming that the plane can, there can be some accident. So the man who was sitting beside that 3-year-old girl, he saw that the girl is holding a book and she's coloring and she's listening to the messages that are being said. And he said, and he's panicking and he's sweating and he's, he's beside himself. He's so nervous. And when he looks at that 3-year-old girl, he says, "My little girl, are you not afraid? What's wrong?" "I am panicking. And they are saying that the plane is going to, it can crash any minute." And the girl says, "No, I am absolutely fine." And he says, "How come you are so, you should be screaming on top of your voice. We are going to die." And then she says, "You know what? You don't know, but I know that the plane is driven by my dad. And my father says, when I am driving, you don't have to worry at all." So that man is totally transformed and he just holds her hand and he says, "Gosh, you have opened up my eyes." And then he calms down. So the gist of the story is that when we have so much faith, so much connection, and that too a childlike connection, a very, very innocent, our prayers, our devotion is totally like a little girl or a little child, totally innocent, who's not, who's not been mucked up by the worldly things and all the smartness, the crookedness of the world. So that's when I think we get to experience that solace and that peace and that joy and that happiness. And then we are like child, because we are just jumping and we don't worry about that. Anything, whatever happens to us, it is again, tu hai, like Malvika said, tu hai, to hum aise hain. So it's like, कि आप लोग हो ऐसे तो मुझे आज ये connection मिला है. And I'm very sure that connection that has been given to me, where that has been blessed, I've been blessed with that, those blessings will come to you as well. So I think that's what I understood from the whole conversation. So I think it was so beautiful. And जब तक वो कहते हैं ना, बाल बांका नहीं कर सकता कोई आपका, I think that's very true. कोई नहीं कर सकता. I am totally there that कोई कर ही नहीं सकता. किसी में ऐसी कोई power है ही नहीं. है ही नहीं, क्या कहते हैं, ऐसी कोई चीज है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है. अगर ये अवेलेबल है ना,
तो सिर्फ मेरे शैतान मन ने That's right. क्रिएट करके रखी हुई है। यू गेट दैट? क्रिएट। मैं बहुत कुछ जिंदगी से, इस छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ देखा मैंने, यू नो। और ये जो आप मेंशन कर रहे हो, इसका भी एक और लेवल देखा मैंने। और मुझे ऐसे लगा कि ये जो भी ये नेगेटिंग चीजें है ना, ये नाग जैसे रहती हैं, नाग जैसे फन फैलाए रहता है ना, ऐसे करके फन फैलाए रहता है, ऐसे करके आपको जो है ना, आपको कभी ब्लॉसम करने का कभी मौका ही नहीं देती। आपके ऊपर फन फैलाए, अगर नाग बैठा रहे, आप देखिए कितना सांस पूरा आता है, नहीं हंसते हो, नहीं देखते हो, नहीं, आप बस सिमट के रह जाते हो। बस ये वही है, उसको हटा के साइड करिए। और क्या, और मुझे ऐसे लगता है कि अगर हमें हमेशा ये, अगर हम कहते हैं, या तो हम कहें ना, है ना, कि तू है, वो भी बिल्कुल ठीक, आई नीड टू बी एन एथियस्ट, ग्रेट, ओके। मगर ये जो है ना, कहते हैं कि तू है और फिर 100% उसके साथ नहीं होते, तो वो बिल्कुल वाजिब नहीं, वो बिल्कुल वाजिब नहीं। क्योंकि ये जो है ना, ये तो दोस्ती में दरार है। बोले तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, करे सब कुछ इधर उधर, समझे कि नहीं? तो जब दोस्ती करी ना, तो फिर हर तुम्हारे दुख में, तुम्हारे सुख में, तुम्हारे, वही तो दोस्त रहता है। नहीं तो क्या रिश्तेदारी? तो अपनी जब ऊपर वाले से कोई जोड़ भी जोड़ा है, इतना पक्का, या कोई भी चीज जिंदगी में मेरे चीज आए ना, मुझे टस से मस नहीं कर सकती। टस से मस क्या, जो तेरा मेरे पे जो हक है ना, तेरा मुझ पे नहीं, मेरा तुझ पे जो कंट्रोल है ना, समझे? हम सारी जिंदगी में आसपास वालों को कंट्रोल करते रहते हैं, तो उससे ऐसा रिश्ता क्यों ना जोड़ो कि मैं ही उस पे कंट्रोल हूं यार, कि यार तू बैठे, मेरा कोई कर सकता है क्या? है कोई ऐसा पैदा किया है क्या तूने, जो तेरी चीज पे ही ऊपर हो जाए? अभी कल ही तो करके चुके हैं, वन एंड ओनली, वन एंड ओनली वन, यू नो। सो whenever वो जो 50-50, 60-40, 80-20, 90-10 वाली जो गेम है ना, उसको छोड़ दीजिए ना। जो, और पता है क्या है, कोई कुछ करना चाहे ना, कि यार कर ही ले, तू जो तू करना चाहे कर ले, अपने यहाँ तो रब है और रब ही है, और हमेशा वही रहेगा, क्योंकि है ही उसकी जगह, ठीक है। ना कमी से आए थे, ना कमी में रहेंगे, ना कमी कभी आएगी। हाँ, या मालविका, आई थिंक कल की कॉल में जो रह गया था ना, रब ने कहा अभी ये जरा 2 मिनट जो इसके इनविटेशन है ना, वो भी करा ही देते हैं आज। लाइक ही सो मैजिकल बीइंग, ही नोज ये मेरा बच्चा कहाँ अटक गया है, अभी भी अटका हुआ है, कोई ना कोई चीज पे अटका है। चल ले, ये ले, ये मैं इनवाइट कर रहा हूँ, आज सामना कर इनका, और देख मेरा बच्चा बन के करियो, हौसले से करियो। एब्सोल्युटली, आप करके ताकत से देखिए, करियो। टेस्ट सामने खड़ा है आपके, टेस्ट आपको सामने खड़ा है, आपको बोलेगा ये ले, अब देख हिलता है तू कि नहीं? सही तेरा सही ट्रस्ट है कि नहीं? ठीक है ना? और कभी भी हम कितने घर नए बना लें, कितना कुछ भी कर लें, कितने उनको हवन पाठ करा लें, ठीक है, हमेशा मैं और मेरा पीछे छोड़ के, तेरी जगह है, तेरी जगह कितनी देर सुंदर बना के रखनी है, तेरा क्या हुक्म है ना, बस सिर्फ ट्रस्टी बन के, यार, ना लेके आए थे ना लेके जाना है, बोलते तो हर रोज है। फिर भी अपने नामों पे जायदादें जब तक लिखवा ना लें, तब तक कहाँ सुकून। बोले बहन को ज्यादा मिल गया था, भाई को कम है कि नहीं है, उसको कम मिल गया, इसको ज्यादा मिल गया। अरे यार, जो मेरी मुकद्दर में तूने लिख दिया, तो वो मुकद्दर बदलने वाला कोई है क्या बैठा? अभी तो नहीं है बैठा। जिस दिन हम बिठा लें, उस दिन सोच लीजिए शैतान का वास,
शैतान का वास है अपनी बुद्धि में, है ना। और जो चीज में हम अगर ये सारी उम्र कहते रहते, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, इसको कभी बिलीव नहीं करते। क्योंकि अगर अपनी किस्मत में उसने लिख रखा है ना यहाँ पे कि आज तुमको दावत 36 भोग मिलेंगे, तो मिलेंगे ही। अपने पास 36 रुपए ना हो, कैसे मिलेंगे मुझे नहीं पता है, मुझे वहां जाने की जरूरत भी नहीं है। अपने को तो ये पता है कि मिलेंगे बस, ठीक है, सिर्फ मिलेंगे। जो जो चीज की अपने आखिरी दम तक जरूरत होगी ना, वो चीज मिलेगी। वो चार्टर प्लेन भी अगर जरूरत होगी ना, वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। अब मेरे पास इतने एग्जाम्पल्स हैं, मैं यहां से कई कई क्लास गई हूँ इकोनॉमी क्लास की टिकट लेके, पता नहीं क्या होता है, बिजनेस क्लास मिल जाती है रास्ते में। एक नया आना, आप डॉलर की बात करते हैं, आप रुपए की, एक नया पैसा नहीं मुझे दिया मैंने, कुछ नहीं। क्या था, आई डोंट नो। इतनी लाइन लगी हुई है, मैं ही क्यों? क्योंकि उसके साथ कुछ होगा ना, उसका दिल होगा। सिर्फ शुक्राने के अलावा, सिर्फ शुक्राने के अलावा आप बाकी की सारी चीजों को एक क्रॉस मार दीजिए। सिर्फ शुक्राने के अलावा उस शुक्राने में रहना सीखिए। जो चीज दिल में आए उसे क्लियर कीजिए। कोई कटु भाव, कटु शब्द, कटु जिसके सामने नेगेटिंग चीज है, अपने लिए हो या किसी के लिए, उसको उसी समय उस एनर्जी को आगे ट्रांसफर ना होते दे। I need to cleanse it now and I clean it. Okay? उसको करके देखिए, बिक्रियां बढ़ जाएंगी, बिजनेस चल पड़ेंगे, बच्चे सही हो जाएंगे, सब कुछ सही है। सिर्फ हमारे जो विकार हैं वो किसी चीज को सही को ना सही देखने देते हैं, ना हमें सही एक्शन लेने देते हैं, है ना। और विकारों से परे सिर्फ एक फॉर्मूला है कि मुझे अपने से ऐसा जोड़ दे कि मुझे तू हर सांस में याद हो, हर सांस में। काम मैं यहां करूं, जुड़ी में तेरे साथ हूं, ऐसा वाली कोई मोहब्बत दे दे, ऐसी वाली मोहब्बत। क्योंकि इस मोहब्बत जो वो आपको दे जाएगी ना, उसके लिए शायद शब्द आपके पास रहेंगे ही नहीं। आपको कुछ और ही लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, आपको कुछ और ही लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी उस मोहब्बत के लिए। आइए, ये लाइफ इसीलिए उसको कोरोना देना पड़ा। हम सारे पेच जो हमारे इधर उधर ढीले थे ना, वो सही मायने में थोड़ा कसने के लिए। मालविका, जब हाँ, नहीं प्लीज करो। I wanted to ask about Seh Bhang also, the meaning of Seh Bhang. Yeah. Seh Bhang is self-illuminated. बताया था आपने, लाइट। Yeah. Self-illuminated कौन होता है? Self-illuminated कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? हम तो self-illuminated है नहीं, है ना। धरती पर भी जो इल्यूमिनेशन आती है, किससे आती है? चांद सितारों से, है ना। या तो सेल्फ इल्यूमिनेटेड कौन हो सकता है? जो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, है ना। उसको किसी और से एनर्जी लेने की जरूरत नहीं। आप श्रीदेवी आप लिख रहे जिसमें ईगो नहीं, ईगो तो आएगी ही फिजिकलिटी से। सहभंग वहां से नहीं आता। सेल्फ इल्यूमिनेटरी जो है वो होता है जो शरीर से परे, जिसका I was not शरीर understanding. है। I was not understanding the bhang, sah and bhang. I was just trying to, नहीं, you know. सहभंग it's a, क्योंकि ये पंजाबी है ना। This is not Hindi. So we can't explain it from the Hindi side. Yeah. Yeah. So, but it means, even if you go to the Punjabi, you can Google it up.
मगर आपको जो ये चौपाइयों का जो भाव है ना, आपको इस चीज को, आपको लिटरल मीनिंग कभी नहीं आएगा अगर आप वो ही डालेंगे उसको, है ना? क्योंकि इनका भाव बहुत गहरा, इन डेप्थ डिफरेंट रहता है जो कि शब्द बता रहा है ना? ठीक है ना? हम निरंकारी निरंकारी हम कितना यूज करते हैं ये वर्ड, मगर कभी किसी ने हमने ये नहीं बोला कि एक्चुअली अहंकार, बिना अहंकार के जो है, और जब हमारा शरीर है अहंकार साथ है, क्योंकि वो तो हमको ले लेके आगे चलाता है ना? वो हमें कभी सुपीरियोरिटी देता है, कभी इंफीरियोरिटी देता है ना? मगर उसको जो सुपीरियर से सुपीरियर है, you know, that is why we use the word supra conscious. We can't use it for any person, anybody who's of the highest consciousness on the planet, but in physicality. You get that? नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महेश को सब कह देते, नहीं नहीं, वो ट्रिनिटी के परे भी है, उनको भी क्रिएट करने वाला बैठा है। ये कहते हैं, और हमने क्या है, हमने क्योंकि सीमित समझ से हम सीमित ही चलते रहते हैं, है ना? भगवान कृष्ण की बात करें तो वो फर्स्ट प्रिंस ऑफ द सतयुग है। यू गेट दैट? फर्स्ट प्रिंस ऑफ द सतयुग। मगर हम अभी कितनों को पता है इस चीज का? नहीं पता है, यू नो, क्योंकि वो चीज नहीं पता ना, इसलिए जो हमें पता है या जो हमें पास ऑन हुई चीज हम उसको बिलीव करते रहते हैं, तभी उसको। और ये जो ये कॉन्फ्लुएंस का टाइम है ना, ये एक्चुअली 100% सत्य जानने का ही वक्त है क्या एक्चुअली? सृष्टि का रचयिता है क्या? क्योंकि कोई कहता है देवी माँ, कोई कहता है वो जो आप कल भी बात कर रहे थे ना, एक्चुअली सारे जो देवी देवता भी जो हैं, वो हमारी क्वालिटीज को, जो हमारे अंदर छिपी बैठी हैं, उनको डिपिक्ट करते हैं। Okay, that is why they are called they tools. are, yeah, that They is are called why tools. that is why they're called Tools. They are the yantra. yeah They are the yantra to get those qualities in you. yeah, because they are like आप घर में फादर फिगर रहता है, उसको देख के आप सीखते हो, है ना? एक्चुअली दे आर रिमाइंडिंग यू, ये आप हो, इसको टर्न ऑन कर लो, है ना? ये आप में शक्ति विराजमान है, इसको टर्न ऑन कर, बस इतनी सी चीज है। हाँ, और हमने उनको ही पूजा करनी शुरू कर दी। पूजा तो करी, अच्छी बात है, उसको इम्बाइब कितना किया? पूजा करने से कुछ नहीं होने वाला जब तक मैं उसको इम्बाइब नहीं करूं, अपने में असिमिलेट करूं, उससे वननेस लाऊं, कोई चेंज ट्रांसफॉर्म करूं अपने आप को, फिर उसको अपने डे टू डे में यूज करूं, ताकि सारा कुछ बदल जाए। हमने उनको एक पेडेस्टल पे तो बिठा दिया, ना सोचते हुए एक्चुअली वो उनका काम क्या है, क्यों है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते, isn't it? So everywhere that we have not looked inside, we have not got clarity and you know what ये सारी रचना जो है ये क्यों है ना? हमने तो सिर्फ यही सोच लिया, हम आए, ये पढ़े, ये लिखे, ये सीईओ बन गए, ये हो गया, वो हो गया, गाड़ी 1 से 2, 2 से 4, बड़ी से बड़ी, सब बस यही था हमारे जिंदगी का महत्व। ये है क्या हमारी जिंदगी का महत्व? ये है क्या हमारी जिंदगी का महत्व? जानेंगे तो बाकी की सारी चीजें तो पूंछ बन के आपके पीछे चलेंगी, क्योंकि आप वो एनर्जी बन चुके हो। आप वो एनर्जी, इतना आप में इतना दम है आपकी एनर्जी में कि वो चीजें आपके पीछे पीछे घूमती हैं। आप समझते हैं? अभी आप चीजों के पीछे, फिर चीजें आपके पीछे। कितना फर्क है, बहुत फर्क है इस सारी चीज में। और मैंने इस चीज का, ये मेरा एहसास है, इस चीज, आप इस सत्य के साथ जुड़ते चले जाएं, आपको ऐसी ऐसी चीजें नायाब जिसे कहते हैं ना, आपकी झोलियां ऐसे भर देगा वो, आप कहेंगे ये आ कहां से रही? अरे इसका तो कभी सोचा भी नहीं था, अरे ये तो कभी विश भी नहीं किया था, अरे ये डिजायर किसको कहते हैं? डिजायर,
हाँ, लोग आपके पास आके ऐसी चीजें दे जाते हैं जैसे आपने कभी ना, आपका कोई ख्वाब में, ना ख्याल में, ना कोई डिजायर, ना इतनी तसल्ली, इतनी तसल्ली कि आपको मैं बता ही नहीं सकती कि उस तसल्ली, आपको जब उस चीज का एहसास होगा ना, आपको समझ आएगी एक्चुअली आप क्या चीज खोते रहे, क्या चीज इतने साल खोए। इसका लाइव एग्जाम्पल हो आप यार। रब ये तो की पता कैसे नहीं नहीं हूँ कि साथ नहीं। में नहीं हो, इतनी छोट क्या है, 2 वर्ड की बात है, रब वड्डा रब ही वड्डा। मतलब इट्स लाइक मेरे कानों में तब से गूंज रहा है जब से आपने बोला है। और यू आर गिफ्ट टू अस। मैं ये नहीं है कि तुम आपके मुंह पे तारीफ करने के लिए कह रही हूँ, आई रियली मीन इट यार। कि एक छोटी जी गल कहंदे ना, एक जे एक चुपाई तुसी जपजी साहब या गुरु कोई नानक देव जी की कोई भी गल तुसी, किसी ने राम राम मरा मरा कहते कहते राम को पा लिया था, कुछ भी अगर नाम पे आज से मैं बोलती हूँ यार कि रब वड्डा रब ही वड्डा, ये मैंने अपने अंदर डाल लेना है। क्योंकि ये एब्सोल्युटली। और आप इतनी उसको बड़ी बात है कि इतनी बड़ी बात है, इतनी को बड़ी बात है कि मैं मतलब मैं ये ट्रेजरी तो है। कहाँ से आप मालविका आई, कहाँ से कौन सी बातें चलती थी, और आज हम उसकी बातें करते हैं, उसकी बातें करते हैं जिसकी बातों के लिए तरसते थे। आज उसी की बात हो रही है जिसकी बातों के लिए, जिसकी बातों से मुझे कामनेस आती थी। आज हम किसी नॉर्मल दूसरी किसी उसकी आकार वाले की बात नहीं कर रहे, आज हम निरंकार की बात करते हैं। आज हम अकाल की बात करते हैं। कहाँ हम इधर उधर भटकते रहे हैं। तो ये गिफ्ट ही तो है, हर रोज एक नई चीज है, और हर रोज किसी ना किसी के मतलब प्रॉब्लम है या किसी की खुशी है, उससे नया चीज सीखने को मिलती है। पता नहीं मेरी स्टोरी में कितने लोगों को राहत मिली होगी कि हाँ रब वड्डा, रब उस तो भी वड्डा, मैं तो कहती हूँ रब ही वड्डा, रब्बा दा रब साडे नाल है। Then why to worry? Thank you so the much. thought changes, everything changes, everything. Yeah. So magical, so magical, so magical, literally so magical. मतलब कैसी ये कमाल की चीज है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितनी कमाल की चीज है। थॉट बदलती है सारा कुछ, आपको लगता है जैसे कायाकल्प हो गई। आज से नहीं, मैं पहली बार ये सोच रही हूँ कि मुझे लगता है मुझे रब से मांगना चाहिए, रब मेरी डिक्शनरी के वर्ड्स चेंज कर देना, थोड़ी मेरी हेल्प कर देना, कितना मजा आए, मैं भी वर्ड्स के साथ खेलने लग जाऊं। और जब ये वर्ड्स के साथ खेलने लगूंगी तो थॉट्स भी तो साथ साथ चेंज होती है ना। And the best part is it is not impossible. Yeah. And that's the beauty of it, that we have the capacity as humans to reach beyond. I'll share something here, Malvika. Sure. Yeah, you know, आपने जो बात करी, that takes me long time back. You know, बड़ी परेशानियां होती थी जैसे सबके साथ होती हैं। भगवान को क्या याद करें जब समझ ही नहीं आता था कि करना क्या है। One day, you know, I was just trying to pen down something, and तो मैंने it was just like कि बाहर देखा सूरज चमक रहा था, वो दिमाग की जिसको बोलते हैं ना बत्ती जलती है, ये लगा कि ये तो सामने ही बैठा है, तुम यूं ही इधर उधर ढूंढ रही हो। And I would just share 3-4 lines, they're beautiful lines, like it's like अंधकार का घोर प्रहर टूटे जो तुम पर, तो मुझे स्मरण करना यह ज्योति धरोहर लो। एंड लास्ट में हाउ आई कंक्लूडेड इट वाज लाइक, निश्चिंत तुम्हारा दर्शन कर मैं निश्चिंत हो जाती हूँ, अपने मन के सभी द्वंद्व बिन बोले तुम्हें बताती हूँ। It, I mean, and these words, they still give me such solace. Although अब इतना आगे आ गए हैं, इतने जाने की जरूरत पड़ती नहीं, पर जब कोई बात आती है ना तो बस यही लगता है कि जब ये लाइनें हैं तो क्यों परेशान होना, शांति रखो, अपना काम करते चलो। I mean, so beautiful. everything will take its own course. It's just that. Take heart. I mean, Natasha, you also stop worrying. भगवान है, he is omnipresent, he is everywhere, तुम्हारे दिल में, दिमाग में, हर जगह बैठा है। बिल्कुल अपना बस wrongness में मत जाओ, अपना काम करते चलो, everything will take its own course. बिल्कुल बेधड़क
बेधड़क होके अपना काम करो. Just that. Absolutely. और वो जब भी बाउट ऑफ ग्रेव एनर्जीज भी आता है उसको भी जाने के लिए जो हम उसको रास्ता देते हैं, उसके लिए कोई चॉइस करते हैं, वो भी मुझे लगता है कितनी इम्पोर्टेंट होती है ना? क्योंकि वो सिवाय मेरे नहीं कोई कर सकता, है ना? कोई भी नहीं कर सकता. कौन कर सकता है? अगर 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 ये कल सेशन मैं तो ऑफर कर सकती हूँ, आप ले ना ले, है ना? ये तो एक छोटी सी चॉइस की बात कर रहे हैं. या किसी भी और चीज में, सिर्फ सेशन की बात नहीं हो रही है. Yeah. So, Shri is writing very nicely. She says, नजरें बदली तो नजारे भी बदले, कश्ती ने बदला रुख तो किनारे भी बदले. बहुत खूबसूरत. Yeah. So, सभी कुछ बदल जाता है. जब हमारी एनर्जी बदल जाती है तो सभी कुछ बदल जाता है. और वो इंस्टेंटेनियस होता है. उसको सालों साल नहीं लगते. है ना? जहाँ पे भी हमने अपने आप को ये चीज दिया हुआ है कि ये तो बस जन्मों जन्मों रहेंगे, अरसों अरसों रहेंगे, जब तक हम रहेंगे तब तक ये परेशानी रहेगी. जहाँ पर भी ये आपने कभी सोचा या आज भी कहीं वो आ जाती है चीज, उसको अपने आप से पूछिएगा कि एक्चुअली आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सोच से ही तो वो क्रिएशन हो रही है ना? तो जब जब हम अपने आप को रोकने का, अपने आप को टोकने का काम अपने जिम्मे ले लेते हैं तो सब कुछ बदल जाता है ना. सभी कुछ. सभी. आइए थोड़ी सी या श्री. आपने आज जो कहा बहुत अच्छा लगा कि उस दिन की बात याद दिला दी कि पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट रहना, उस पर भरोसा रखना कि वो सब संभाल लेगा. ये हर बार याद नहीं रहता यार, ये याद रह जाए तो मजा आ जाए कि वो सब संभाल लेगा. उसको पता है क्या, मैं ये कहती हूँ मेरा विश्वास है, पर हमेशा याद नहीं रहता कि उसको पता है कब क्या कितना कैसे देना है, क्योंकि उसके लिए सारे बच्चे एक जैसे ही, वो भेदभाव नहीं करेगा. पर ये हर बार याद नहीं रहता, पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट रहना कि वो कैसे संभाल लेगा. रहेगा यार? कैसे रहेगा यार? बताइए. उस पर उतना विश्वास करना जरूरी है ना हर बार. याद कैसे रहेगा ये बताइए श्री. उस पर विश्वास रखना चाहिए ना. वो ग्रेटिट्यूड में रहना, वो भी बात आपने कही, वो भी बात बहुत अच्छी लगी थी. आप उसके साथ दिन प्रतिदिन समय कितना बिताते हैं? कितना? आधा मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, या कभी विजिटिंग प्रोफेसर जैसे संडे के संडे, मंडे के मंडे, थर्सडे के थर्सडे, पूर्णिमा पूर्णिमा, है ना? क्रिसमस क्रिसमस, दिवाली दिवाली. जितना जितना आप उसके साथ समय बिताते हैं वो आप ड्यूरेशन गिनिएगा और बस. That is the only formula. Only. There is no other formula for this. क्योंकि जितना समय उसके साथ बिताया उतनी जल्दी वो याद आया. समझे? उतनी जल्दी. प्रेमा भक्ति. क्योंकि जितना समय उसके साथ नहीं बिताया, that is the distance between you and him. Yes? है ना? तो फिर उसकी There are याद two में भी lines. उतना distance होगी. There are 2 lines of Kabir, Shri Devi. These are for you. Jal bich dhobiya, marat piyasa. We are with him all the time. The only thing is, marat hum fir bhi mar rahe hain प्यास से,
We are sitting in the midst of the pool. जल बिच धोबिया मरत पियासा, जल में खार है पिए नहीं मूर्ख, अच्छा जल है खासा. That we are, it is like we are there. He is with us all the time. But the thing is, हमने अपनी आंखों पे जो पर्दा डाल दिया है और हम उसको रिमेम्बर नहीं कर रहे हैं ना. वो हमारे साथ साथ चलता है, हम उसको देख नहीं पाते. वो कहता है भाई आंखें खोल लो, मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ. तो वो खोल नहीं रहे हैं हम. जब हम वो खोलेंगे तो जल बिच धोबिया मरत प्यासा, मरेंगे नहीं फिर प्यास से. फिर हम ये है कि हमें ये नहीं लगेगा ओ हमें भूल जाती हूँ. नहीं, कैसे भूल जाती हूँ? सांस लेना भूलते हैं हम क्या? नहीं भूलते ना. ऑटोमेटिकली होती है, अगर याद रखना पड़ता तो वो भी भूल जाती. It's like टीचर ने लेसन दिया और कल टेस्ट हो फर्ज करो या ना भी हो टेस्ट, हम उसको याद करते हैं ना रेपिटेटिवली. So that is what we have to learn. सब में रिमेम्बरेंस जो हम बात करते हैं वो do you ever remember him? What is your practice? What is your practice? Do you practice, कि हर सांस में अभी भी ये क्लास चल रही है, खाना खा रहे हैं, वो तो है, हम क्या कर रहे हैं? वो तो हमेशा ही है, हर कण में ही है. मुझे कितना याद है? नहीं है. खाना खाए तो चिकन में बिजी हो गए. नहीं है. खाना बनाया तो इंग्रेडिएंट्स में बिजी हो गए. बच्चे आए तो बच्चे पढ़ाने में बिजी हो गए. बोले बड़ी ड्यूटी कर रहे हैं. नहीं है. नहीं. तो ये जो इंटरनल कनेक्शन है उसको क्या घंटियां बजा के करना पड़ता है? क्या उसे बाजे बजा के करना पड़ता है? क्या उसे कैसे करना पड़ता है ना? है ना? और फिर हम कितने जाप जप ले, कितने जाप. लोग चिलिया करते हैं ना, चिलिया 40 दिन कुछ है ना. और उन सारी चीजों का मायना क्या है? चिलिया ना किसी ने भी किया होगा ना, कभी उसको पाने के लिए नहीं किया होगा. गाड़ी आ जाए, नौकरी आ जाए, बच्चे की एडमिशन हो जाए, है ना, सेट ले लें, अपसेट हो जाए, इसी सब चीज के लिए किया होता है. यू गेट दैट? कभी भी किसी ने चिलिया इसलिए नहीं किया होता कि 40 दिन निरंतर लगातार तुमको याद करेंगे. क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें पाना है. यू गेट दैट? हम सिर्फ हर चीज हमारी ना कम वक्त मटीरियलिस्टिक है यार. हर चीज में मटीरियल, हर चीज. कोई चीज तुम ले लो, कोई दे क्या गया, मैंने उसको क्या देना है. मैं उसको दे दिया, उसने मुझे वापसी कम दिया. मैं उसको हमेशा करती हूँ, वो मुझे हमेशा कम देता है. नहीं है? अगर ऐसा कैलकुलेशन ऊपर वाले ने हमारे साथ करी होती ना, खुदा ना खास्ता, हमने भिखारी भीख मांग रहे होना था गलियों में. मैं आपको रियली बता रही हूँ. हमने उसको क्या दिया, वो हमें सारा दिन क्या देता है. कभी उस चीज को कभी कंपैरिजन कभी करके देखा है? हम जो इतना कुछ हमें देता है उसके लायक है हम? नहीं है. तो ऐसी हरामी हमारे अंदर भरी हुई है. ऐसी हरामी लोगों को गिनते रहते हैं, वो मुझे क्या दे दिया, मैंने उसको क्या दे दिया. तुमने क्या दे दिया? उसी की चीज थी, उसी के बच्चे को दे दिया. क्या दे दिया? मत देते. क्या एहसान है उसमें? क्या एहसान है? ये ऐसी कले युग नहीं बना है. ये ही कले हैं हमारी जिंदगी में. लेन देन, ये वो ये, बस यही है. हमें कले में रहना अच्छा लगता है ना. हमारी ये एडिक्शन हो चुकी है. लगता है ये नहीं किया ना जिंदगी सफल ही कैसे होगी. ना दे कोई. आपके भंडारे पूरे हैं कि नहीं ये बताइए. आपको कोई एक रत्ती की चीज ना दे, आपके भंडारे पूरे हैं कि नहीं. ये हमेशा हर रोज अपने को पूछिए. अलमारियां भरी हुई हैं कि नहीं.
अलमारियां भरी हुई है कि नहीं, टॉप 7 दिन के लिए 7 चाहिए ना, 70 तो अंदर वैसे लटक रही हैं, और 70 नहीं 170 होंगी जिनको देखा भी नहीं होगा कभी। समझे कि नहीं? उस चीज का शुक्राना नहीं किया, किसी ने क्या तुम्हें कम दे दिया, तुम किसी को क्या क्या दे सकते हैं हम यार, किसी को सुकून तक तो दे नहीं सकते, जिसका कोई 1 रुपया नहीं लगता है, क्या देंगे हम किसी को? तुम समझते हो हमारी कोई है औकात है किसी को सॉलिटर दे देंगे हम? ऐसी कमबख्ती है हमारी जिंदगी में जो हमने खुद डाली हुई है, और हम हर चीज उसका जो सिला है ना, कहेंगे ऊपर वाले ऐसा मैंने क्या किया जो मुझे इसका सिलसिला भुगतना पड़ रहा है। अपने आप को इसी क्वेश्चन को ना चेंज करिए, ऊपर वाले ऐसा मैंने क्या नहीं किया जो मुझे ये नहीं मिलना चाहिए था। सब कुछ वो किया जो मुझे आज मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज है ना, मेरे ही कर्म फलीभूत हो रहे होते हैं, तो पड़ोसी के कर्म में फलीभूत करने लायक हूं नहीं, है ना? किसी दिन ना एक क्लास करेंगे, है ना, कर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म। ओके, 4 चीजों की, तो पता चलेगा एक्चुअली कर्म होते क्या है। जिनको हम कर्म मानते हैं ना वो होते नहीं, और जिनको हम मानते हैं वो, जो नहीं मानते वो होते हैं, जो होते हैं वो हम मानते नहीं। या लेट्स हैव, बिकॉज आई थिंक अब बहुत खिचड़ी पका चुके हैं लाइफ की, बहुत। और कितनी पकाएंगे? अभी और इतना ज्यादा वक्त नहीं है खिचड़ी पकाने को, अभी सुलझने का वक्त है बस। और सबसे आसान जो सुलझाहट है वो सिर्फ उसके साथ जुड़ने को मिलेगी, सिर्फ। क्योंकि आपके वो विचारों को सुलझा देता है तो बाकी गांठें आती ही नहीं। वो सुलझ गया, सारी जिंदगी सुलझ गई, सारे रिश्ते सुलझ गए, सारे बैंक अकाउंट सुलझ गए, सारी चीजें जो डूबी थी ना वो सब तर गई, सब। इसीलिए उसको कहते हैं तू तारने वाला, है ना? यही है तारना, और कुछ नहीं है। सोच बदलने से सब कुछ बदल देता है, तर जाता है, और क्या है। जब भार ही नहीं होगा तो तरेंगे ही, वेट से ही डूबते हैं। नहीं तो फ्लोटिंग ही रहेंगे, लाइट ही रहेंगे, तरेंगे ही, तरने के लिए बने। सिंपल ना? अमेजिंग। आइए कुछ देर थोड़ी मेडिटेशन करते हैं। ऊपर वाली की दया से इतनी 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 अच्छी क्लास देता है, इतनी अच्छी। उसको हर रोज कहती हूँ कैसे दे देता है यार तू, कैसी चीज है, हाँ कैसी चीज है तू। तेरे से खूबसूरत चीज कोई मुझे आज तक दिखी ही नहीं। Do you know, there used to be Ramayani, जो रामकृष्ण मिशन में आते थे, and in the annual celebrations he used to conduct Ramayan classes, if you remember. I don't know whether you remember or not. He used to come from Delhi, and he used to always say that, जैसे आपने बोला ना कि तो कैसे दे देता है, that when that supreme God, when he sees that satsang जो चल रहा है, all the people with such positive vibrations, they are all collected together. He puts in so much, blessings in that. वो जो collective जो energy बना देता है कि उसको वो एक अलग ही shape बन जाती है उसकी. So that is again, कि कैसे कर देता है, that this is how, because he loves people, he loves his children who are talking about him, who are talking about the truth, who are trying to understand, that is the beauty of it. So that is why it is just so amazing
to have people who are like-minded, who are so honest from inside, from the heart of hearts. They want to learn, they want to be, they want to connect, and be what that supreme light is. So that's the beauty. Absolutely. आइए, let's meditate a little. ऑडियोज हैं? Yes. Are the audios there? Yeah. Yes. Yeah. Yes. Yes, perfect. Yes or no? No Yes. audios? Audio? Audio है. Yeah. आइए, इस खूबसूरत समय को थोड़ा और खूबसूरत बनाए. इतनी नायाबी, और इतनी प्यार भरी नायाबी जो हमें हर रोज निरंतर, लगातार उससे मिलती चली जा रही है. हर क्षण, हर पल, हर शब्द में वो अपने आप को ढाल कर हमारे जहन में जैसे डालता चला जा रहा है. हमारे जो सोच, हमारे विचार जो इतनी कड़वाहट से कहीं रुंधे हुए थे, इतने सालों से, इतने जन्मों से, आज कैसे वो रुधी हुई जो जगहें हैं हमारे शरीर में, वो कैसे अपने मधुर वाक्यों से, अपनी मिठास से, अपनी रोशनी से रोशन करता जा रहा है. जिसने इतनी सुंदर क्रिएशन, पूरी कायनात बनाई, उसकी रोशनी कैसी होगी? कैसा होगा वो उजियारा, जहां वो है और सिर्फ वो ही है. वो है और बस वो ही है. क्योंकि और कोई हो ही नहीं सकता ना. कौन बैठा है जो उसके साथ अपनी एनर्जी को मैच अप कर सके? हमारी सोचें जब सीमित हो जाती हैं, तो सारी चीजें हमारी
सीमा में बद्ध हो जाती है, लिमिटेशन। तो खुशी भी तो सीमित ही रहेगी, पैसा भी तो सीमित ही रहेगा, प्यार भी तो सीमित ही रहेगा। क्लैरिटी भी तो सीमित ही रहेगी। तो इस सीमित से हम बाहर कैसे निकलें? एक उसका उजियारा ऐसा है जो कितनी भी कड़ी सीमाएं हो ना, वो सब सीमाओं की कड़ियां तोड़ देता है। सब सीमाओं की कड़ियां। हम उस नूर के बच्चे हैं, हम उस नूर के बच्चे हैं जो हमें नूर प्रदान करता है, डिवाइन लाइट। हम उस नूर के बच्चे हैं, इसलिए कोहिनूर है। एक 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 बच्चा कोहिनूर। मगर जिसने उस नूर को पहचाना, वो ही तो ये जानेगा कि वो कोहिनूर है। इतने सालों लगा नहीं, जब तक उसको पहचाना नहीं था कि जैसे अनाथ से घूम रहे हैं। लौकिक माँ बाप होते हुए भी लौकिक, जो आपके इस जिंदगी के माँ बाप, जिन्होंने आपको इस शरीर में जन्म दिया, वो होते हुए भी अंदर से जो फीलिंग आती थी, वो ऐसे लगता था जैसे अनाथ से घूम रहे हैं। जब जब वो नूर से जुड़ते गए, तभी तो वो फीलिंग थी ऑर्फन वाली, अनाथ वाली, वो जाती रही। जहां जहां मुझे अकेलापन, लोनलीनेस खाती थी, वहां वहां मैंने उस नूर को पहुंचने का की जगह ही नहीं दी थी। इसलिए ही तो थी इतनी अकेली, इतनी लोनली। और सोच में आता था कि ये जिंदगी में कोई समझ ले इंसान कि मुझे ये फीलिंग आती है। समझे कौन? सभी तो उस अकेलेपन में, लोनलीनेस में घूम रहे हैं ना, तो मेरा दर्द कौन समझे?
मगर एक अंदर की चाहना उससे जुड़ने की, उस नूर से, उस परमात्मा से, उस रोशनी से। उसने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया, और कैसी समझ में खूबसूरती बख्श दी कि उस रोशनी का समझ आनी शुरू हो गई। हमें पता लगा गॉड, अल्लाह, परमात्मा है कौन। बचपन से तो उसको जपते आए थे, मगर समझ का उस जपने से जुड़ना बहुत जरूरी है। और वो जब जब जुड़ते चले गए ना, जैसे सारे जोड़ों में जान आ गई, रिश्तों में, अपने शरीर में, अपनी स्मृति में, अपने विचारों में, सब में जान आ गई। और वो जो अंधकार, जो लोनलीनेस, जो अधूरापन जो था ना, वो कहीं जाता रहा। वो जो नूर इलाही है ना, वो है मेरा परमात्मा। क्योंकि आज उसको मैं समझ पाई हूँ, और अपनी हर जिंदगी के हर मोड़ पे मुझे वो नूर का एहसास रहता है। कदम कदम पर, सांस सांस पर, ऐसी खुशी उसके अलावा कोई दे ही नहीं सकता था। जिसके अपने पास पूरी नहीं है, वो आपकी जिंदगी, आपका जहन कैसे भरपूर कर पाएगा। हमारी तो हर सांस में वो बसता है, और वो बसता है तो इसलिए ही हम यहाँ बस रहे हैं। नहीं तो हमारी बस हो चुकी थी। इतने सालों अपनी बस करवाई ना, जब हर वाक्य के बाद, हर सेंटेंस के बाद निकलता था बस, मेरी तो बस हो गई। उसके साथ, उसके रोशनी के साथ जब जब जुड़ती चली गई, तो देखा सब कुछ बदल रहा है। कल्याणकारी के साथ जुड़ के सिर्फ कल्याण ही हो सकता है, तभी तो उसको कल्याणकारी कहते हैं।
हमें आपको तो नहीं कोई कहता, क्योंकि वो सिर्फ कल्याण करने ही आया है। हमारे विकारों को कल्याण वो ही कर सकता है, और उसमें हमारा कल्याण है। जब जब हमें वो मिटने का मौका देता है, तो हमें लगता है शायद हमारा वजूद मिटा रहा है। मगर क्या वो वजूद मिटाता है? सच्चाई पूछिए अपने आप से। वो सिर्फ हमारे विकार मिटा रहा होता है, सिर्फ विकार, ताकि हमारा कल्याण हो जाए और ये पूरी दुनिया जो है ना, कल्याणकारी बन जाए बस। और जब तक हम एक दूसरे का कल्याण ना सोचें, तब तक ये मुमकिन नहीं, ऐसी कल्याणकारी दुनिया का पैदा होना। वो इसीलिए हमारे पीछे तोप की तरह लगा हुआ है, क्योंकि उसे हमें हमारे से इंतहा मोहब्बत है। इंतहा। हमें कहाँ से कंपैरिजन आ जाता है? कहाँ से? अगर हमें पता है कि हर कण में रब है और रब ही रब है, तो फिर कंपैरिजन भी किससे करेंगे बताइए? आइए इस मिठास को पूरी दुनिया में बिखेरते हैं। और जिनका अकल्याण कहीं उनकी अंदर सोच में रहता है, उस अकल्याण को भी, उसमें भी मिठास भरते हैं, ताकि वो कल्याणकारी हो जाए उनके लिए, उनके आसपास के लिए, इस पूरी धरती के लिए। आइए उनसे इन आंखें बंद में कुछ छोटी सी बातें कर लें, जिन जो हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं सोचते। आइए उनकी शक्लें सामने लेके आइएगा, उनसे पूछिएगा, कहाँ से आ रही है तुम्हारी कड़वाहट? क्या आज बदलोगे इस कड़वाहट को? कहाँ से आ रहे हैं ये कांटे? क्या इन कांटों को बदलोगे?
कहाँ से आ रही है इतनी हेट्रेड? आज क्या तुम तैयार हो इसे बदलने के लिए? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बहुत तुम्हारे साथ हूँ। और आज मैं कॉन्ट्यूट बनने का काम चाहना से, अपनी इच्छा से करना चाहता हूँ। और कॉन्ट्यूट पता है क्या होता है? विचोला, ऊपर वाले और आपके बीच का विचोला। आज अपनी चॉइस से बनना चाहता हूँ। और परमात्मा इन्हें ऐसी मिठास, ऐसी आराम, ऐसी खुशी बख्शना जो मैंने अपने लिए चाही, और उसको मल्टीप्लाई करके इनको देना। इनके जो जन्मों के कांटे हैं ना, वो आप क्षणों में निकाल बाहर कर देना, ताकि इनकी सोचें भी मीठी हो जाए, तेरे नूर से भर जाए और तुझसे ये जुड़ जाए। इनका कल्याण हो और इनके बहाने मेरा भी कल्याण हो। ये बहाना कितना खूबसूरत है ना उससे जुड़ने का। ये छोटे छोटे बहाने बस उससे जुड़ने के लिए कितने खूबसूरत है, क्योंकि ये हमें याद दिलाते रहते हैं कि उसकी याद में रहना ही हमारा धर्म है। यही सक्सेस है जिसे हम धरती पर ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं। आइए इस मिठास को सब जगह बांटते हैं। जितना हम बांटते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो हमारे भंडारे भर देता है। प्यार बांटेंगे, वो अपने प्यार से आपको इतना भरपूर कर देगा। खुशी बांटेंगे, वो आपको इतनी खुशियों से भरपूर कर देगा। आराम बांटेंगे, वो आपको बेशुमार आराम से आपको भरपूर कर देगा। बांट के तो देखिए। मगर जब बांटते हैं ना, कुछ नहीं एक्सपेक्ट करना, कुछ वापसी नहीं चाहिए। उसमें मान सकते हैं कितनी खुशी आपको हो। ना खुशी आपकी एक्सपेक्टेशन से ही आती है। मैंने इतना समय लगाया इन पर, इन्होंने तो मेरी कदर भी नहीं करी। कदर सिर्फ करतार कर सकता है, क्योंकि वो जौहरी है। दूसरा क्या जाने।
अगर आपकी वो कदर ना करता तो क्या आज हमें यहाँ उतर कर अपने शब्दों में भर कर क्या हमें भरपूर कर देता। जब उसने ही कदर कर ली तो और हमें कहाँ से कदर चाहिए, कहाँ से? कौन इस दुनिया में बैठा है जो हमारी कदर कर सके? और अगर हमें ये पता रहे कि मेरा कदरदान मेरा करतार है, मेरा कदरदान मेरा करतार है, क्योंकि वो मेरा तारनहार है। क्योंकि वो साकार है। क्योंकि वो उजियारा है। क्योंकि वो है, बस वो ही है। वो नूर है और मैं उसका कोही नूर हूँ। और वो इस कोहिनूर का पारखी है। पारखी को ही तो परख होगी ना कोहिनूर की। आइए इस नूर का जो नूर है उसे दूर दूर तक फैलाएं, दूर दूर तक। और जहां जहां कहीं कांटे दिखते हैं वहां ज्यादा फैला दें। आइए इस जगह से वापस आने का किसका दिल करता है? आइए, ना आने का दिल भी करे तब भी वापस तो आना ही पड़ता है। आइए इतनी सारी मिठास जो हमने अपने सफर में इकट्ठी करी है उसको लेकर बटोर कर वापस आ जाएं। अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं। और इस ठंडक को, इस मिठास को, इस आराम को अपने घरों में भी फैलाएं। सारी हवा बदल जाए। जैसे हमने नींव में
नींव ही बदल दी हो अपने घरों की, आज नई नींव बना रहे हैं। और कैसा होता है कि जब नींव नई डाल लेना तो उसके ऊपर नए किस्म का घर बना सकते हैं, खुशियों से भरा, आराम से भरा, उसके नूर से भरा। जहां उसकी इस घर की दीवारें भी जो है ना, वो उसके मिठास से बोलती है, एक एक कण में उसकी आवाज गूंजती है, उसका प्यार गूंजता है, उसकी रोशनी हर जगह बिखर रही है। और इतनी प्रॉस्पेरिटी, इतनी प्रॉस्पेरिटी और इतनी खुशी, तसल्ली भरी। आइए एक बार और अपनी इतनी खूबसूरत सांसों के साथ जुड़िएगा और आ जाइएगा इस खूबसूरत घर में जिसमें आप रहते हैं, उस खूबसूरत कुर्सी पर जिस पर आप बैठे हैं, उस खूबसूरत बिस्तर पर जिस पर आप लेटे हैं, और अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए जब भी आप आना चाहें आ जाइएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि आप उस नूर के बच्चे हैं और आपको ही नूर है, और कण कण में रब है और सिर्फ वो ही है। इसके साथ रहेगा और मैं प्यार भरी आज के लिए विदाई लेती हूँ और फिर कल मिलेंगे।